Hi and welcome to Manifest Magic. This is Avni and this is your 2023 tarot reading. ये रीडिंग आपके एलिमेंट के हिसाब से की गई है. अगर आप अपने एलिमेंट के बारे में नहीं जानते हैं, हेड टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एंड यू विल गेट टू नो कि आपकी राशि कौन से एलिमेंट को बिलोंग करती है. वहाँ आपकी रीडिंग का, आपकी पर्सनल 2023 रीडिंग का टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. उस पर क्लिक कीजिए और सीधे अपनी रीडिंग पे पहुँचिए. Have a very very happy new year. दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट 2023 कैसा जाने वाला है आपका, क्या एनर्जीज के साथ आप एंटर कर रहे हैं, व्हाट इज़ द थीम फॉर यू इन दिस ईयर. क्विकली शफल द कार्ड्स फॉर यू. Libra, Aquarius, Gemini 2023. So the card, wow, excellent. This is the only reading where I got this beautiful card, 10 of Pentacles. चारों तरफ से तो पैसे आ रहे हैं आपके. सारे इन्वेस्टमेंट्स, जितनी जगह आपने अपना ध्यान, अपना फोकस लगाया है, अपनी एनर्जीज लगाए हैं, सब कुछ आपको रिजल्ट देने वाला है. ऑल गुड रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम. हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, लॉट ऑफ मनी. जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की है वो सब फ्रूटफुल होने वाली है. आई सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनियन ऑल्सो. शादी देख रही हूँ मैं कुछ लोगों के लिए. Some of you are going to settle down. This is a very very strong indication. कुछ लोग आप settle down होने वाले हैं. Air signs. Some of you are going to meet the love of your life. A very happy family. आप एक बंधन में बंधने वाले हैं. Though this is not a very marriage card. Four of Wands ज़्यादा marriage card होता है. But then this shows a very happy family, a complete family actually. So if you are looking to settling down with somebody, सोच रहे हैं उसके बारे में, तो I think that person will just be absolutely perfect for you. And I see a lot of blessings also. बहुत blessings, ancestral blessings मैं देख रही हूँ. I see a lot of blessings. As if ancestral नहीं, I feel that there are people who you have been kind to. आप कुछ लोगों के लिए आपने 2022 में या उससे पहले आपने कई लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, जिस वजह से आप उन सब प्यार का, उन सब काइंडनेस का, उन सब कंफर्ट का आपको रिजल्ट मिलने वाला है. पीपल आर गोइंग टू एक्चुअली ब्लेस यू एंड दैट ब्लेसिंग इज गोइंग टू मेक योर लाइफ so ब्यूटिफुल. You have not done anyone wrong and that is why you're going to have a very peaceful connection. I see a very playful energy. At the same time, I see a very matured energy. So I see a balance here. And 10 of Pentacles means family life, means stability. बहुत ज़्यादा stability आप ला रहे हैं. Bottom of the deck आपका 3 of Wands है. Actually मुझे इसके बारे में पहले बात करना चाहिए था. 2022 से जब आप 2023 में जा रहे हैं, the first thing that I see for you is a lot of travel. So Gemini, Libra, Aquarius, आप travel तो definitely करने वाले हैं. And you are going to cross seas. कैसे समझाऊँ, मैंने 7 समुंदर पार नहीं आ पा रहे हैं, बट येस डेफिनेटली यू पीपल आर गोइंग टू ट्रैवल. एंड कुछ कनेक्शंस हैं जो आपके अपने सिटी से बाहर होंगे. वो कनेक्शंस आपके फ्रूटफुल हो सकते हैं. कुछ आई ऑल्सो फील सम काइंड ऑफ न्यू एनर्जी कमिंग इन. आपने कहीं अपने पैशंस या अपना फोकस, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस या कुछ भी पैशनेट जो आप कर रहे हैं, वो सारे पैशन को आप कहीं जहाँ लगाए हैं वो आपसे थोड़ा दूर है. आई फील you are trying to achieve a business, you're planning for a business or you're trying for a new job जो कि आपके सिटी से थोड़ा दूर है. या you are being passionately involved with somebody who is a little far away from you. I feel these are few things that are going to be really successful for you. This is going to actually be very successful business plan, very successful job. If you are looking for a job opportunity, you might get a job जो आपके city के बाहर है. You might be in a relationship with somebody who is outside the city. आपको travel करना पड़ सकता है काम के लिए this year. And yes, you're going to get a lot of success this year, air signs. I'm so very happy for you. This is a wonderful start to 2023. I also feel that आप कहीं ना कहीं you are going to be, oh I'm sorry, the camera focus just changed. In this year
you are going to experience a lot of goals being achieved जो आप पैशन से करें. मतलब बेसिकली आप कुछ भी अगर पैशनेटली करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलेगी. मतलब आप कोई मोनोटोनस काम करेंगे ना, मतलब एक प्रोसेस है, आप उसको फॉलो किए जा रहे हैं, आप वो कोई काम करेंगे ना तो उतना आपको सक्सेस नहीं मिलेगा जितना आपको पैशनेटली किया हुआ कोई काम, क्रिएटिवली किया गया कोई काम आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, ज़्यादा द आउटकम्स विल बी वे बेटर. एंड you should always choose more passion related work in this year compared to the same methodical work. But I see a lot of growth, मतलब in all aspects. 10 of Pentacles का कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी in all aspects, in all balanced growth जिसको हम कहते हैं. Let's take another card for you. Air signs, Libra, Aquarius, Gemini. Let's see what kind of emotional messages, emotional choices you will be making for this year. The answers you need are coming. Full moon in Gemini. Oh my God, this आपकी एयर साइन की रीडिंग है, एयर साइन का कार्ड आ गया. और क्या चाहिए आपको? What more do you want me to tell you that this reading is absolutely aligned for you. You're going to see a lot of completion. बहुत चीज़ों का आंसर आपको मिलने वाला है. I also feel that some of you are a little not sure about a person. किसी को लेके आप सोच रहे हैं. ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कम्युनिकेशंस क्लियर रखें. आप अगर इस साल अपने कम्युनिकेशंस क्लियर रखते हैं और काम डाउन रहते हैं सिचुएशंस में, स्पेशली रिलेशनशिप्स, देन you will receive a lot of answers. चीज़ों को हवा में मत रखिए. अगर आपको लग रहा है कि ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, सो टेक दैट अप्रोच. आई थिंक वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. एंड आई ऑल्सो सी अ न्यू लव. आई डोंट नो व्हाई अगेन फुल मून इन जेमिनी समवेयर ऑल्सो इंडिकेट्स लाइक अ वेरी फ्लर्टी एनर्जी एंड न्यू लव एनर्जी थोड़ा होता है इसमें जेमिनी में. ऑल्सो अगर आप कुछ छोड़ रहे हैं पीछे, सो लेट दैट गो, बिकॉज द मोमेंट यू लेट गो ऑफ समथिंग, पुराना कुछ भी अगर आप पीछे छोड़ रहे हैं तभी आपको नया कुछ बेहतर मिलेगा. स्पेशली दिस अप्लाइज टू रिलेशनशिप, स्पेशली दिस अप्लाइज टू जॉब्स. अगर आप नया जॉब अपॉर्चुनिटी सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, दिस इज़ द राइट टाइम यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स, बिकॉज जॉब एप्लीकेशंस में आपके अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं क्लियर हो जाने के. जो भी इश्यूज़ आप 2022 में फेस कर रहे थे एंड विद दैट आप आगे बढ़ रहे हैं, आई थिंक बातचीत करने से वो सोल्यूशन आ सकता है. तो जिसके साथ भी आपके कुछ अनबन है या आप क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उस इंसान के साथ आप बात कर लीजिए एक बार. आपको बहुत आंसर्स भी मिल जाएंगे, क्लैरिटी भी मिल जाएगी. एंड देर इज़ अ सिचुएशन वेयर you might also realize that you are very important for that person. So बात करने से आपको ये पता चलेगा कि आपकी अहमियत क्या है उस इंसान में, आपको वो किस दर्जे पे रख रखा है. सो अच्छा नहीं होगा, सो you have to let go. एंड अच्छा होगा तो you will just gain another good connection for yourself. This year is going to be a lot of love. बहुत love वाली एनर्जी आ रही है इसमें. So just enjoy it, go with the flow. So it's always good to keep talking to people. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि some talking you have to do with yourself also, because you have the power to create magic. मतलब आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं. आपकी अपनी जो रियलिटी होगी ना इन दिस ईयर, यू कैन क्रिएट मैजिक विद दैट. बट यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ ऑल्सो. यू हैव टू नो वेयर टू टॉक व्हाट, कहाँ पे क्या बात करनी है, किससे कैसे बात करनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए इस साल. and then things are going to work out for you, especially love. I cannot emphasize enough, but ये जो कार्ड्स आए हैं विद द बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है 3 of Wands एंड वेरी वेरी पैशनेट एनर्जी, बहुत प्यार से भरी हुई एनर्जी है. सो दिस इज़ वन थिंग. एंड देन यू हैव द 10 of Pentacles, which again emphasizes so much on a stable life in terms of family, health, wealth, love, relationship, connections, growth. And then you have this beautiful card which says the answers you need are coming. The person you need is coming. The relationship you need is coming. The job you need is coming. The growth you need is coming.
दिस इज़ अ क्लियर आंसर. एंड क्योंकि ये फुल मून इन जेमिनी है, आई हैव टू से दैट दिस ईयर among the other air signs, Gemini, you are going to stand out a little. आप पे ज़्यादा फोकस रहेगा इस साल. Let's take the other card. Let's see this beautiful color deck. ये क्या आपके लिए इंडिकेशन लेके आया है. वाओ, देख रहे हैं कितना सुंदर कार्ड है. सिल्वर. बी persistent. नंबर 27, 9, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. कुछ लोगों के लिए नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, द नंबर 27 इंपॉर्टेंट हो सकता है. सिल्वर की एनर्जी है. सिल्वर अगेन इंडिकेट्स द एनर्जी ऑफ मून, द एनर्जी ऑफ बीइंग काम, द एनर्जी ऑफ बीइंग क्रिएटिव. एंड आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ, क्योंकि सिल्वर इज ऑल्सो एन एनर्जी विच डिटरमाइंस the ethnicity, you know, that ethnic way of living. Silver is very very ethnic and yet modern, you know, that blend, that balance, ये बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने अभी कहा आपको कि आपको किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, अपने आप को you know शांत रखना है, एंड you know अपने बातों को, अपने वर्ड्स को you know मोल भाव करके यू हैव टू कम्युनिकेट. सो सिल्वर ऑल्सो इज़ अगेन वेरी सिमिलर टू दैट. बहुत बैलेंस्ड होता है. It's not very luxurious like a diamond or a platinum, but and not as not as old or not as how do you say, ethnic as gold, and not as luxurious as diamond. But then there is a beautiful blend of being modern and yet very ethnic. So silver could be the color that can help you stay in a calmer state. 27 and number 9 could be a good number reference if there is a question in your mind. And silver, if somebody is wearing, I think that could really help. Though I would say please be well advised on this before you take up any kind of jewelry. This is not the right forum to understand that, and I'm not the right person to guide you on that. But yes, the energy of silver is definitely going to help you, air sign. I'll take another card. This is a beautiful deck of the goddess. Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, the cards are stuck. We have a beautiful card of Kurma, the tortoise avatar. This is my God, look at the color. It's so pretty. I'll read the card for you. Diplomacy. Again, the card says diplomacy. A very very clear indication that आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना है, थोड़ा सोच समझ के अपने बातों को रखना है. Ability to provide support. आप बात कीजिए लोगों से, because if you speak to people, that's when you know who can support you, who cannot. Steadiness and dependability. Skills to manage contrary phases. This is so very important message for you. अभी मैंने जो समझा रही थी ये उसी का मैसेज है कि आपको बहुत बैलेंस्ड रहना पड़ेगा. इवन द एनर्जी ऑफ टॉर्टॉइस इज हियर, विच इज़ अगेन यू नो, कछुआ क्या होता है, बहुत स्लो होता है, उसका पेस बहुत स्लो होता है, बट देन इवेंचुअली इट विंस द रेस. सो गोइंग स्लोली, टेकिंग थिंग्स कामली, बट बीइंग वेरी फोकस्ड, हैविंग क्लियर communication, having a clear plan will help you achieve the right kind of results. So I will take just last another one card for you, air sign, and this is, if you have any question, कोई सवाल है आपके मन में 2022 में जो आप लेके 2023 में जा रहे हैं, एंड आपको लग रहा है कि दिस इज़ वन थिंग जो मुझे अगर थोड़ा पता होती या मुझे गाइडेंस मिल जाती तो बेटर होता. कोई इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं बट आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही. एनीथिंग, एनी जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब सीन है, कोई कलीग को लेके आप परेशान हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सोचें. एंड आई विल क्विकली शफल द कार्ड्स फॉर यू. थिंक ऑफ द क्वेश्चन. Gemini, Libra, Aquarius. The card for you is unlikely. So if this is like a job change, it's unlikely that आप इस चीज़ को you, and the bottom of the deck says get in more information. So if your question is about a job change,
दिस इज़ अ क्लियर मैसेज दैट आप जॉब चेंज कर सकते हैं, बट ट्राई टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द काइंड ऑफ स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द न्यू जॉब. ऐसा ना हो कि आप यू एंटर अ न्यू जॉब एंड यू डोंट नो कैसे करना है. एंड इफ़ इट इज़ अबाउट अ न्यू वेंचर लाइक अ बिजनेस समथिंग, get the required skills, get the right people in your team and then start. If it is a love question, I would say कि आप बहुत जल्दी ये सवाल पूछ रहे हैं. If you are questioning about a person, कोई relationship है, कोई love situation है, कोई marriage है, कोई no contact है, कोई breakup है, ऐसा कोई भी सवाल आप अगर पूछे हैं, I would say this is too early. आपने सवाल बहुत जल्दी पूछ लिया है, अभी आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं. यू नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट मोर एनर्जी, अ लॉट मोर लव, अ लॉट मोर इमोशंस, अ लॉट मोर एफर्ट इन टू द रिलेशनशिप, एंड देन you can come back and you can come back and try another timeless reading in this channel जो आपको उस टाइम पे गाइड करे. वो टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं. एंड दिस isn't the right time for the question you had in mind. ये आई थिंक ये कार्ड प्लेसमेंट फॉर फायर साइन भी आया था. आई थिंक द सिमिलर कार्ड प्लेसमेंट आया था. एंड आई वुड से दैट एयर साइंस इन रिलेशनशिप, you need to invest a little more in the relationship before you can ask the question that you were asking in your mind. So yes, Gemini, Libra, Aquarius, this is your reading for 2023. I wish you all the very best. I hope you get a lot of clarity, have great experiences and experience a lot of growth, which I can see. Experience new love, stable relationships, and tons of love from my side. Wish you a very happy new year. Thank you. Welcome to your reading water sign. अगर आपकी zodiac sign कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो है तो ये आपकी रीडिंग है. एंड आई विल क्विकली स्टार्ट टू शफल योर टैरो कार्ड. आई ऑल्सो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. आई डोंट नो व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो. जब भी आप देख रहे हैं तभी मेरे लिए आप मेरी तरफ से आप हैप्पी न्यू ईयर की विशेज़ एक्सेप्ट करें. I hope you're having a great year. I hope you will have a great year. So let's take cards for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. So the first card is the Seven of Pentacles. Very thoughtful energy. And what you are entering, behind the scenes क्या चल रहा है? Behind the scenes a lot of thinking. Water signs, what is going on? Sleepless nights. देर रात तक आप या तो काम कर रहे हैं, या तो बातें कर रहे हैं, या कुछ नहीं करके सिर्फ सोच रहे हैं. रेस्ट की एनर्जी नहीं है, ये थोड़ी अनरेस्ट की एनर्जी है. आई ऑल्सो फील बहुत कुछ है आपके प्लेट में. बहुत सारी चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ों पे आपने इन्वेस्ट कर लिया है. बहुत सारे काम हैं. फाइनेंशियली आप कुछ प्लान किए हैं. गोल्स, एक्चुअली आई थिंक राइट वर्ड आपके लिए गोल्स होगा. सो वाटर साइन मैं देख रही हूँ कि आप में बहुत अनरेस्ट के साथ आप ये ईयर एंटर कर रहे हैं. इमोशनली आपके कुछ गोल्स थे, फाइनेंशियली कुछ गोल्स थे, प्रोफेशनली कोई गोल्स थे. सो आप अभी मुझे बहुत बिखरे हुए स्टेट में दिख रहे हैं. मतलब आपने जो अचीव करना था वो आपने पूरी तरह अचीव नहीं किया, बट समवेयर आप भूल रहे हैं कि आप इस पूरे ईयर में आप काफ़ी दूर आए हैं. राइट आप अगर 2022 की जनवरी का सोचें तो आपको पता चलेगा कि देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप प्लान किए थे करने का, और उसमें से आपने मे बी नॉट 90%, मे बी नॉट 100%, बट आपने एटलीस्ट 70% कर लिया है. बट फिर भी आप कहीं ना कहीं यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ, यू आर नॉट हैप्पी विथ योर सेल्फ. आप अपने आप को सोच रहे हैं कि एक साल और निकल गया और मैं ये नहीं कर पाया, ये वाला गोल मेरा रह गया, मैं ये यहाँ इन्वेस्ट करना था मुझे टाइम एनर्जी, मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट करती रही. सो कुछ रिग्रेट मैं देख रही हूँ. स्लीपलेस नाइट्स, डिस्टर्ब्ड शेड्यूल्स भी मैं देख रही हूँ. आई एम नॉट सीइंग अ वेरी रेस्टफुल moment at the when you're entering the year. I'm seeing a lot of unrest going on. आपको लग रहा है ऐसा, मेरे what I'm really getting a little concern about you water signs. So Cancer,
स्कॉर्पियो पाइसेस, आई थिंक पाइसेस एंड कैंसर मोस्टली। मुझे स्कॉर्पियो उतना स्ट्रेस्ड आउट नहीं दिख रहा, मुझे कैंसर एंड पाइसेस थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हैं, थोड़े ज़्यादा चिंता में हैं। कुछ लोग चिंता में नहीं है तो जो खुशी उन्हें मिल रही है वो भी उन्हें हज़म नहीं हो रही है, वो सोच रहे हैं मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, अपने आप को डाउट कर रहे हैं, सेल्फ डाउट कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि मैं गलत जगह टाइम वेस्ट किया। सो इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, इंस्टेड ऑफ सीइंग थिंग्स कि आप बेटर की तरफ जा रहे हैं, आपने एक कुछ अचीव किया था और फ्रॉम लेवल 1 यू हैव कम टू लेवल 7 और 8, बट आप उसमें खुशी नहीं होके, आप उसमें खुश नहीं होके आप 9-10 में नहीं पहुंचे, उसका दुख आप ज़्यादा मना रहे हैं। आपके कुछ आपको एक बैकवर्ड वाली फीलिंग आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, मतलब जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहा है आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मैं स्कॉर्पियो की भी बोल रही हूँ। मे बी यू आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग दिस, बट कैंसर एंड पाइसेस आई थिंक ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये बैकवर्ड एनर्जी। उनको लग रहा है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में हैं, शुड दे स्टेप बैक अ लिटिल, स्टेप डाउन अ लिटिल एंड देन रीलॉन्च। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जहाँ हैं आप उस जगह को अप्रिशिएट कीजिए, आपने जितना सीखा है, जितना आप अचीव कर पाए हैं इस साल में, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, बिकॉज आई थिंक दैट विल चेंज योर एनर्जी एंड दैट विल सेट द टोन फॉर 2023। बिकॉज 2023 में आपके जितने इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हैं 2022 में, चाहे वो इमोशनली किए हों, किसी रिलेशनशिप में आपने टाइम एनर्जी दिया है, उसमें आपको फ़ायदा मिलने वाला है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने टाइम एनर्जी दिया है, अभी शायद आपको लग रहा होगा कि यार उस हिसाब की ग्रोथ नहीं हुई, वो मैं उतना मैं सीख नहीं पाई, उतना मैं सीख नहीं पाया, उतना मैं अचीव नहीं कर पाया। बट 2023 में आपको ये सारे रिजल्ट मिलने वाले हैं। सो अभी जो एनर्जी के साथ आप 2023 एंटर कर रहे हैं वाटर साइन, आपको ऐसा बहुत अनरेस्ट है, आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं 2022 में, बस हंसते खेलते निकल गया साल और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैं ये कर सकता था, यार मैं वो कर सकती थी। तो ऐसा नहीं है, आपने बहुत कुछ अचीव किया है एंड द बेस्ट पार्ट, आपने खुशी खुशी उन चीज़ों को अचीव किया है। एंड जो भी आपने जहाँ भी अपनी एनर्जी लगाई है, ऑनेस्टली एंड अर्नेस्टली जो काम किया है, वो सब 2023 में आपको अच्छे रिजल्ट ला के देगा। अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, अच्छे इमोशनल रिजल्ट्स, अच्छे कनेक्शंस जो आपने 2022 में बनाए थे, वो सारे 2023 में आपके फ़ायदे में काम करेंगे। This year is going to be a year where you should decide कि आप अपना एनर्जी कहाँ लगाएंगे। 2023 में मैं आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, मैं एडवाइस भी नहीं दे रही हूँ। वाटर साइंस, प्लीज़ 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 जज द रिलेशनशिप, द कनेक्शन, द वर्क, द पर्सन, जज देम, not in a bad way, but judge them because you should know your worth। आपको अपनी वर्थ पता है, आपको पता है कि हर कोई आपका टाइम एनर्जी नहीं डिज़र्व करता, आपके एफर्ट्स नहीं डिज़र्व करता, तो आप प्लीज़ मूव अवे कीजिए। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इट्स नॉट रॉन्ग टू लेट गो ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट वर्थ of your time, of your energy। not everybody in life deserves a place on your table। so आप बिल्कुल भी इस बात का रिग्रेट ना रखें कि कुछ लोगों से मेरा नाता टूट गया, कुछ जगह मैंने ज़्यादा काम कर लिया बट वहाँ से मुझे वैसा रिटर्न नहीं मिला, कहीं इन्वेस्ट किया वैसा रिटर्न नहीं मिला, एंड बहुत सारे अदर चीज़ें, किसी पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, यू स्पोक अ लॉट टू दैट पर्सन एंड वो इट केम डाउन टू नथिंग। अभी भी आपको लग रहा है कि यार मुझे शायद यही डिज़र्व करती थी मैं, या यही डिज़र्व करता था मैं, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो ये सब एनर्जी से आप प्लीज़ निकलिए वाटर साइन, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को अंडर वैल्यू कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा फील करा रहे हैं खुद ही। ऐसे भी ऑल 3 साइंस ऑफ वाटर साइंस आर प्रोफेशनल ओवर थिंकर्स, आई वुड से। बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवर थिंक कर लेते हैं एंड आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू स्टॉप इट। आपके लिए एडवाइस ये रहेगी कि इन द कमिंग फ्यू डेज़, जितना जल्दी हो सके, इन अ पीरियड ऑफ 9 to 10 days,
अगर आप अपनी एनर्जी शिफ्ट कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। उसके लिए आई वुड सजेस्ट सिटिंग डाउन विथ योर सेल्फ, अपने साथ बैठें, समझें कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, आपके फोकस कहाँ जा रहा है, आपका थॉट्स आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, एंड उन चीज़ों को करेक्ट कीजिए। अगर वो थॉट्स आपको रिग्रेट अंडर वैल्यू कर रहे हैं अपने आप को आप उन थॉट से, सो चेंज द एनर्जी, वैसा ना सोचें, बिकॉज यू हैव एक्चुअली अचीव्ड अ लॉट इन दिस 2022। आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। एक रिलेशनशिप में आपने टाइम एनर्जी अगर दी और वो बंदा या बंदी आपके साथ नहीं है जब साल ख़त्म हो रहा है, जब आप नए साल में जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ मिला नहीं, इसका मतलब ये है कि आपने सीखा, आपने कुछ सीखा कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। आपने एक जॉब में बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया और फिर आपको लगा यार उस हिसाब की ग्रोथ नहीं मिली, आपने सीखा। कभी कभी क्या करना चाहिए उससे इम्पॉर्टेंट सीख होती है क्या नहीं करना चाहिए। एंड आई पर्सनली हैव लर्नड अ लॉट ऑफ क्या नहीं करना चाहिए, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं जहाँ हूँ। एंड आई एम श्योर you people, Cancer, Pisces and Scorpio, you are great people with great creativity, excellent communication and a lot of energy. चीज़ों को आप अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। सो इस एनर्जी से निकल के आपको इस एनर्जी में जाना है। यू हैव टू स्टार्ट gathering your thoughts, putting your thoughts in maybe paper and pen if that helps you, and then moving towards decision making, choices कीजिए कि कौन से जगह या किस aspects of life में मैं अपनी energy invest करूँगा। I would say this is a very good year if you focus on the financial side, career side, business side, वो सब चीज़ों पे आप अपना focus रखिए, बहुत important है। Also I would say कि please maintain a good healthy night routine, 10 मिनट अपने साथ बैठिए, बिना फ़ोन के सोएं, ज़्यादा फ़ोन या सोशल मीडिया नहीं यूज़ करें, आपके लिए इस साल वही बेटर रहेगा। एंड गेट अ गुड नाइट स्लीप, अपना नाइट रूटीन ठीक कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी। वाटर साइन, दिस इज़ माई एडवाइस टू यू। एंड फोकस, दिस ईयर्स फोकस इज़ ओनली गोइंग टू बी योर करियर एंड योर finances and other such growth oriented areas. इमोशनली मैं उतना नहीं देख रही हूँ कि आप इमोशनली कुछ आपका ज़्यादा एस्पेक्ट है और फोकस में इस ईयर। आई डोंट सी दैट फॉर यू वाटर साइन, बट आप हालांकि ऑलरेडी बहुत इमोशनल हैं, वाटर साइंस आर वेरी इमोशनल, सो वो रहेगा आपके साथ। बट देन येस, लेट मी टेक द अदर कार्ड, न्यूमरोलॉजी कार्ड। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ emotional choices you should be making, any guidance. Cancer, Scorpio, Pisces, and the card is wow, it looks so beautiful. इसकी illustration कितनी सुंदर है, देखिए। Have faith in your dream. वही, आप बहुत चिंता कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया, आपने कुछ किया ही नहीं है, ये पूरा साल मैंने बर्बाद कर दिया, आपको ऐसे ही लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वाटर साइंस, प्लीज़ हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप बहुत लंबा सफ़र तय करके 2023 यू आर स्टेपिंग इन, दिस इज़ एन एक्सीलेंट ईयर फॉर यू। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, द लक इज़ ऑन योर साइड, यू जस्ट डोंट हैव टू वरी एट ऑल। कोई चिंता की बात ही नहीं है वाटर साइंस। एंड यू जस्ट नीड टू फोकस योर एनर्जीज़ इन द राइट डायरेक्शन। आप ऐसी जगह अपनी एनर्जीज़ को फोकस पे लाइए जहाँ आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ऐसी जगहों पे एनर्जी फोकस पे लाइए। इफ़ यू आर गुड इन ड्राइंग, फोकस कुछ दिन आप 2023 के स्टार्टिंग डेज में वही काम कीजिए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, एंड दैट्स हाउ यूल बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यू एंड यूल मूव फॉरवर्ड। डोंट गिव अप. That, I think that is a very straight message. Water signs, Cancer, Pisces and Scorpio, I would say don't give up on yourself. Have faith. कोई भी सिचुएशन हो वो धीरे धीरे विल सेट इनटू द मोल्ड एंड आपका फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। यू डोंट नीड टू वरी। जस्ट एक पन्ना ही पलट रहा है, कैलेंडर का एक पन्ना ही पलट रहा है। यू जस्ट एंटरिंग अनदर ईयर। लाइफ नहीं ख़त्म हो रही है, दुनिया नहीं ख़त्म हो रही है। यू स्टिल हैव अनदर 1 year टू मेक दैट फ्रेश स्टार्ट अगेन।
जो भी जो भी हो रहा है अभी, इट्स जस्ट वन स्टेप एट अ टाइम, आप वैसे लीजिए. सेल्फ हेल्प, maybe self help books can also help you build up that confidence, right? If you are into reading, self help books पढ़िए, जो they teach you the virtues of how to stay happy, how to be kind, and how to be kind and compassionate towards yourself. अपने लिए देखिए, सेल्फ हेल्प की किताबें आप अपने लिए पढ़ें, not to become a good person, but to be a good person to yourself. Also I would say कि just be very focused this year. बहुत फोकस क्लियर कीजिए अपना. अगर आपका कोई गोल सेट नहीं है फॉर द ईयर, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू अचीव एंड जस्ट फोकस ऑन दोज लिटिल थिंग्स. बहुत लंबी लिस्ट मत बनाइएगा. लिस्ट बनाइए आप 4-5 चीज़ों की, एंड देन फोकस ऑन वन एट अ टाइम. जस्ट मेक 4 गोल्स, 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड हर क्वार्टर वाइज उसको डिवाइड कर दीजिए कि मैं साल के इस क्वार्टर में ये इस पे फोकस करूँगा या इस पे फोकस करूँगी. ऐसे करके आप डिवाइड कीजिए. आई थिंक यू विल हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन डूइंग इट. आप एक क्वार्टर में कुछ कुछ अचीव करते जाएंगे, एंड देन यू विल बी इन अ बेटर प्लेस, एंड यू विल ऑल्सो experience that you're being able to achieve a lot more. So this is one I think practical advice I could give you. चीज़ों को मतलब don't be disheartened when you see that things are not happening in your favor. अच्छी चीज़ों को ना टाइम लगता है, बहुत अच्छी चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. आई एम सॉरी इफ़ यू गेट टू हियर अ लॉट ऑफ नॉइज़. मैं ये वीडियो 31st को रिकॉर्ड कर रही हूँ, एंड people around me are really partying hard, so I'm sorry if you hear a lot of noise. Kids are having fun. So yes, be patient. चीज़ें धीरे धीरे होंगी. Build confidence, build courage in yourself, have faith in yourself. That is how you are going to overcome all of it. और जो भी चीज़ों पे आप फोकस करेंगे this year, water signs, you are going to achieve it. आपको मिलेंगी रिजल्ट्स, आपके हिसाब के होंगे, पॉजिटिव आउटकम्स होंगे जहाँ भी आपने सही तरीके से ईमानदारी से फोकस लगाया. सो जस्ट फोकस ऑन पुटिंग योर फोकस इन द राइट प्लेस. चीज़ों को सेग्रीगेट कीजिए, नीटली कैटेगराइज कीजिए कि आप कहाँ अपनी एनर्जी देना चाहते हैं, एंड मेक 2023 अ बिग ईयर फॉर योर सेल्फ. सो आई जस्ट टेक अनदर कार्ड. लेट्स सी विच कलर गिव्स आउट विच मैसेज. ये डेक मुझे बहुत पसंद है. ये कार्ड अपने आप गिर गया, बट नॉट टेकिंग इट क्योंकि शफल्ड नहीं था आपके लिए. वाटर साइंस, जस्ट लव दिस डेक. स्पाइसेस, वाओ, ओ माय गॉड. आप देखिए कितने सुंदर कलर कॉम्बिनेशंस आए हैं. ग्रीन, द कलर ऑफ ग्रोथ. और मैं आपको क्या कहूँ, रिवाइटलाइज योर नर्वस सिस्टम. रिवाइटलाइज, आई होप यू कैन सी इट. रिवाइटलाइज योर नर्वस सिस्टम. हैव अ गुड नाइट रूटीन. मैंने जैसे कहा, आपकी नर्वस सिस्टम कब आराम करती है, कब शांत होती है? ओनली एट नाइट, व्हेन यू जस्ट लेट गो ऑफ थिंग्स एंड स्लीप पीसफुली. तब आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है, रीबिल्ड करता है, रिवाइटलाइज होता है, एंड यू आर रेडी फॉर अ फ्रेश न्यू स्टार्ट द नेक्स्ट डे. very very important, very very important water sign, that you have a good night routine. ग्रीन इज़ ऑल्सो अ कलर ऑफ ग्रोथ. आप एक चीज़ देखिए, मतलब मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप जहाँ फोकस करेंगे वहाँ आपको ग्रोथ मिलेगी. दिस ईयर का ये आपके लिए द बेस लाइन इज, जहाँ आप फोकस करेंगे वहाँ आपको ग्रोथ मिलेगी. ये देखिए, दिस कार्ड ऑल्सो हैज़ अ येलो एंड अ ग्रीन थिंग एंड अ ग्रोथ being indicated. This illustration also indicates growth. This illustration indicates a ready growth. So ये तीनों कार्ड अभी तक जो निकले हैं सब सेम मैसेज ही दे रहे हैं. फोकस्ड ग्रोथ, फोकस्ड ग्रोथ. आप 5 चीज़ आपका बॉटम ऑफ द डेक, अगर आपको याद नहीं है, आई जस्ट शो यू अगेन. आपके बॉटम ऑफ द डेक में आप इतनी चीज़ों पे यू आर ट्राइंग टू गेट सो मेनी थिंग्स डन इन वन गो. आप फोकस ही खो बैठे हैं, आपका फोकस ही खो गया है, तो आप कैसे अचीव करेंगे कुछ भी? You just have to let loose, water signs. You just have to let loose and believe in yourself, have confidence in yourself and be focused. Focus कीजिए. 10 चीज़ें एक बार में नहीं होती हैं. आप मल्टीटास्कर हो सकते हैं. इंडिविजुअल अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, वो 10 काम एक साथ कर सकते हैं.
But sometimes the body, the mind, they need time to adjust to different changes, to adjust their focus. कैमरा भी जब हम करते हैं, now this camera, if I put my hand here and then here, आप देखिए वो focus move कर रहा है, right? You can see. So it did take maybe a second or half a second to regain the focus. वैसे ही आपका mind है. If you're doing and if you want to do 10 things at the same time, or if you have to do 10 things at the same time, you need to also have a routine of rest. जब आप रेस्ट करेंगे then you will be able to refocus. Maybe 2-3 काम करते हैं आप, तो have a small break, breather लीजिए आप हर अलग काम के बीच में, so that you can refocus. I think that is something that is going to really help you. Let's take the God's card. This is another very beautiful deck. This is one deck that मैं हमेशा I go back personally for my own guidance. Water signs. Okay, so the card of Narad Muni has come. Again, Narad Muni, I really can't tell you. This person, ये कार्ड का एक clear meaning तो immediately आता है. This card, signifies this person being present in a lot of places. बहुत सारी जगहों में इनका प्रेजेंस होता है. हर जहाँ पे भी कुछ हैपनिंग हो रहा होता है, नारद मुनि पहुँच जाते हैं. बट there is also a very beautiful aspect of this person, this personality. You know what? This person is always happy. आप देखेंगे कुछ ड्रामा भी हो रहा होगा. This person, whenever is portrayed on television, is portrayed in a very happy and go lucky mood. अगर उन्हें स्ट्रेस भी आता है थोड़ी देर के लिए, and he says, he's like Narayan, Narayan, and he is gone, and he just lets loose of the entire problem or the situation. So this is an indication to you, water signs, that आप 10 काम कीजिए, बट चीज़ों को कंट्रोल मत कीजिए. मतलब आउटकम को कंट्रोल मत कीजिए. आप प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं ये काम करूँगा या मैं ये काम करूँगी इतने बजे से इतने बजे, एंड आई एम गोइंग टू बी फोकस्ड. ये आप कर सकते हैं. बट अगर उसका आउटकम उस टाइम ड्यूरेशन या आपके टाइमलाइन के हिसाब से नहीं आया, तो यू डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू पैनिक. दिस ईयर यू ऑल्सो हैव टू जस्ट वर्क, बी फोकस्ड, वर्क, और द प्रोसेस के ऊपर अपना कंट्रोल जमाइए. अपने फोकस, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर आप कंट्रोल जमाइए, बट आउटकम पे नहीं. आउटकम आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए. जस्ट लाइक हिम, ही जस्ट टेक्स द गॉड्स नेम नारायण नारायण, एंड वो जाने देते हैं. he just lets it be. जो है, जो ठीक है, वो होगा. आप पैनिक करने से चीज़ें जल्दी नहीं हो जाएंगी, बल्कि आप अपना आउटकम गड़बड़ा देंगे. इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड आउट एंड यू वर्क, दैट वर्क विल नॉट हैव 100% ऑफ योर क्रिएटिविटी और 100% ऑफ योर कैपेबिलिटी, राइट? आप नहीं कर पाएंगे. अगर आप फ्रीली करते हैं उस काम को, तो आप अपना 100% देते हैं और आउटकम भी उस लेवल का आता है. सो लेटिंग लूज इज़ ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इस ईयर करना है, वाटर साइंस, कि आपको आउटकम कंट्रोल नहीं करने. आउटकम के लिए आपको यू हैव टू लीव इट टू गॉड, द यूनिवर्स, और जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं. लेट मी जस्ट रीड द बैक ऑफ द कार्ड ऑल्सो फॉर यू. आई विल जस्ट पिक इट अप. म्यूजिकल एबिलिटी. सो पीपल जिनको म्यूज़िक से you release your tensions or your stress. I think music can help you people. Knowledge of Vedic literature. कोई मंत्र है, कोई श्लोक है, पढ़ने से आपको शांति मिलती है, आप वो कीजिए. योगा, मेडिटेशन, you can do any of these just to calm yourself down. Attachment to singing of God's name. अगर आप कोई भगवान का नाम रटते हैं, उससे आपको राहत मिलती है, आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, तो आप वो कीजिए. अगेन दिस कार्ड एंड दिस कार्ड आपके सामने शफल किए गए थे, एंड दे आर सो सिमिलर. रिवाइटलाइज योर नर्वस सिस्टम. भगवान का नाम लेने से, मेडिटेशन करने से, ये सारी चीज़ें करने से आप यू रीच अ स्टेज वेयर योर नर्वस सिस्टम रिलैक्सेस, वेयर यू आर इन अ calmer state, where you can get your attention to one center. So if some of you are not into meditation and not into reading, I would suggest 10 मिनट ही बैठ जाइए अपने साथ अकेले एकांत में, and
एंड जस्ट लेट द थॉट्स बी द वे इट इज़. अपने आउटकम्स को मत कंट्रोल कीजिए. आई थिंक दैट इज़ द बैडेस्ट थिंग दैट यू कैन डू दिस ईयर. So water signs, I'm going to take the last card for you. This is going to be like a question answer card. I would want you people to think of a question, situation, person, जो भी आप 2022 से अपने साथ 2023 में ले जा रहे हैं एंड आपको लग रहा है थोड़ी कन्फ्यूजन है, थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, आपको लग रहा है कि इसके बारे में थोड़ा मुझे गाइडेंस मिल जाती तो बढ़िया हो जाता. तो उसके बारे में सोचिए. बाय द टाइम आई शफल द कार्ड्स फॉर यू, इट कुड बी लाइक अ येस और नो आंसर, इट कुड बी एनीथिंग, एनी क्वेश्चन. सो व्हाट इज साइन? कैंसर, Pisces. Opportunities. So this year you are going to get a lot of opportunity. अगर आपका question, see I'm going to show you the bottom of the deck. Meditation brings answers. और मैं किस तरह आपको समझाऊँ I'll just keep this here for you, क्योंकि मैं पूरी रीडिंग में आपको यही समझा रही थी. How you have to relax, how you have to calm yourself down, not be so controlling, not be so thinking bad about yourself and not understanding your worth. So yes, meditate. अभी मैंने just आपके सामने ही shuffle किया है and देखिए this is again the same thing that has come down. Meditation could be really beneficial. नहीं होता है meditation, शांत बैठ जाइए, कोई भगवान का ओम की ध्वनि आप सुन सकते हैं, शंख की गूंज आप सुन सकते हैं, कोई भी सॉन्ग जो आपको यू पुट्स इन टू अ कामर स्टेट, उसको आप लगा के 10 मिनट बैठ जाएं. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी. आपका जो सवाल था, अगर वो इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू लव, लेट मी टेल यू, इफ़ देयर इज़ अ पर्सन इन माइंड जिसके बारे में आप सोच के यू वर थिंकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, द कनेक्शन, ऐसा कुछ सोच रहे थे, तो you are going to get a lot of opportunity to be with this person. You are going to get a lot of opportunity to understand this person. मैं yes या no नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत चीज़ें unfold नहीं हुई हैं. If that is what you can understand, कि in relationship related questions अगर थे तो चीज़ें अभी unfold नहीं हुई हैं. कुछ चीज़ें आपको ऐसी opportunity, ऐसी चीज़ें मिलेंगी in the coming year that you can unfold more on this relationship. If you are having a question related to work, finance, business, then it's a very clear message. आपको ऐसी चीज़ों को करने का या ऐसे goals achieve करने का या ऐसे goals achieve करने का, या आपके कोई business का goal है, या आपके you want to change a job और आप increment मांग रहे हैं, तो आपको ऐसी opportunities मिलेगी. I don't know why I suddenly, if somebody is studying and you had a question, I don't know whose energy I've picked up, but अगर आपका ऐसा कोई question था that you have आपने कोई पढ़ाई की है and you still not very sure कि इसको मैं use कैसे करूँ, you are going to get an opportunity this year. This year आपको एक ऐसी opportunity मिलेगी जहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये पढ़ाई क्यों की, या मैंने ये examination क्यों दिया, या मुझे ये certificate क्यों. I don't know. I also feel water signs, आप थोड़ा कम काम भी कर रहे हैं. आप इतनी यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स कि आप फोकस ही नहीं कर पा रहे कि आपके लिए राइट क्या है. यू प्लीज़ मेडिटेट वाटर साइंस. इस साल बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओनली आई वुड से यू सिट डाउन विथ योर सेल्फ एंड चीज़ों को क्लियर कीजिए. आपकी लाइफ बहुत क्लटर्ड लग रही है, बहुत कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है. आप सेटल डाउन होइए, काम डाउन एंड राइट आउट द थिंग्स जो आपको अचीव करनी है, राइट आउट द थिंग्स दैट आपके लिए मैंडेटरी है, एंड देन आई थिंक थोड़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी एंड अपॉर्चुनिटीज़ विल कम डाउन. सो अगर आप एक काम कर रहे हैं एंड फिर आपको लग रहा है कि मैं ये भी कर लेता, मैं वो भी कर लेता, और मेरी शादी भी हो जाती, मेरा रिलेशनशिप भी हो जाता, ऐसे नहीं होगा. यू विल गेट अपॉर्चुनिटी इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू वर्क. आपने अगर कुछ पढ़ाई कर रखी है, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस योर स्किल्स जो आपने सीखी हैं. And if you are more focused, you will be able to attract this opportunity. This is what this card actually clearly implies, कि अगर आप focused हैं तो आपकी तरफ energies आएंगी, अगर आप खुद ही lost हैं तो opportunities आएंगी and you will just miss them. So be a little more organized and focused is the theme for the year for you water signs.
So yes, this was your reading, Cancer, Pisces and Scorpio. I wish you all the very best for the coming year and a very, very happy new year. And may you achieve whatever you want. And I pray that you receive a lot of clarity and good health. A very happy new year to you. Bye-bye. हाय फायर साइन, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर 2023. अगर आपकी जोडियक साइन एरीज, लियो या सैजिटेरियस है तो ये आपकी रीडिंग है. अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स एंड गाइड्स यू इन सम वे और द अदर. So I'll quickly shuffle the tarot cards for you first. Let's see what we have for the fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. One more time. Thank you. And we have the first card that comes out is the Six of Swords, and the bottom of the deck energy is the Magician. So what I feel for you, fire sign, is that you have actually you are entering this year with a lot of energy, where you want to experiment a lot of things. You have turned into a fresh energy. You have turned into a child again, but a child who has gained the required experience. पिछले साल 2022 में आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली रिलेशनशिप में, इमोशनली, फाइनेंशियली, आपके इंटेलेक्ट, आपको बहुत चीज़ों की क्लैरिटी मिली, बहुत सारी चीज़ें आपने लेट गो की, बहुत सारी पैशनेट चीज़ों को आपने अपनाया, बहुत नई चीज़ें की, एक्सपेरिमेंट किए, जिस वजह से आपको हर तरह लाइफ के हर एस्पेक्ट में थोड़ा या ज़्यादा थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस मिला है हर एस्पेक्ट में. आप ऐसा नहीं हुआ है कि इस 2022 में आपने सिर्फ इमोशनली ही कुछ सीखा है. आपके इस 2022 ईयर में जो जा चुका है या जा रहा है, जब भी आप ये रीडिंग देखें तो इसमें आपने हर लाइफ के हर एस्पेक्ट को एक अलग फॉर्म में देखा है. हर एस्पेक्ट को आपने जिया है, हर एस्पेक्ट से आपने कुछ सीखा है. एंड विथ ऑल ऑफ दैट एक्सपीरियंस, but with a childlike energy, with a fresh energy, with an energy, एक अलग enthusiasm, एक अलग energy, like बच्चों वाली जो energy होती है ना, उनको कुछ नहीं आता, एकदम स्पंज के जैसे होते हैं. आप जो भी डालेंगे स्पंज के ऊपर वो ऑब्जॉर्व कर लेगा. वैसी ही एक फ्रेश एनर्जी के साथ आप 2023 एंटर कर रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर पाता. पीपल दे टेक बैगेजेस. कमिंग टू दैट, आपका पहला कार्ड ही है वॉकिंग अवे. सो द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स जो होता है, दिस कार्ड इलस्ट्रेट भी कर रहा है आपको कि आप चीज़ों से मूव अवे कर रहे हैं. आप पीछे अपने 2022 का जो बैगेज है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल बर्डन्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल गलतियाँ हो, कुछ डिसीजंस आपने लिए, कुछ चॉइसेस आपने ली जिस वजह से मे बी आपके फाइनेंसेस हर्ट हुए हैं, वो सारी चीज़ों की चिंता या वो सारी चीज़ों का जो चॉइसेस के रिजल्ट्स थे, उनको आप पीछे छोड़ के 2023 में एकदम मैजिशियन की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं. आई एम सॉरी अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा हो देयर. इट इज़ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 31st, तो पीपल अराउंड मी आर एक्चुअली इन अ वेरी पार्टी मूड. So I'm sorry for that and apologize if there's any disturbance. So yes, fire sign, Aries, Leo and Sagittarius, आप बहुत ही ज़्यादा fresh energy, enthusiasm के साथ, and best part is, magician card, Mercury का card होता है. This is the first card in the deck. This is a major arcana. This card actually implies a lot about getting things done. So 2023 में आप ऐसी ही एनर्जी के साथ एंटर कर रहे हैं जहाँ आप एकदम फ्रेश एनर्जी, यू आर नॉट गोइंग टू कैरी एनी बर्डन. आप सारे बर्डन्स पीछे छोड़ के एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू गेट थिंग्स डन. द बेस्ट पार्ट इज़ हर कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है व्हेन इट्स न्यू ईयर, रेजोल्यूशंस बनाते हैं हम लोग, बट नॉट एवरीबडी कैन लीव द बैगेज बिहाइंड. बट येस, फायर साइंस, दिस इज़ अ ग्रेट कार्ड फॉर यू, बिकॉज आई कैन सी यू लीविंग ऑल द अनरेस्ट, ऑल द बैगेजेस, ऑल द रॉन्ग डिसीजंस, सारे रिग्रेट्स को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं. एंड जो आप अपने साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं 2023 आर योर एक्सपीरियंसेस, द फ्रेश एनर्जी and people who care and love you. You're also moving forward with a lot of clarity. 2023 फायर साइंस आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेके आने वाला है. आप चीज़ों को बहुत लॉजिकली देखने वाले हैं, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग आप करने वाले हैं, विच इज़ गोइंग टू बी ग्रेट.
आपको इस टाइम पे अपने कम्युनिकेशंस पे ध्यान रखना है, क्योंकि समटाइम्स व्हेन वी स्टार्ट टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि आप करने वाले हैं फायर साइंस, तो आई बिलीव थोड़ा कम्युनिकेशंस बिकम्स अ लिटिल रफ, सो उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए. Besides, I would like to say that since you're moving towards calmer waters, कुछ लोगों के लिए 2023 क्योंकि ये नेपट्यून का साल आने वाला है, दिस इज़ गवर्न बाय नंबर 7 विच इज़ अगेन अ वेरी लेड बैक एनर्जी. तो कुछ लोगों के लिए इमोशनली थोड़ा आपको लेज़ी बना सकता है. सो बी एक्टिव एज फार एज पॉसिबल, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, ज़्यादा डोंट लेज अराउंड टू मच. बट येस, आई वुड से दैट वॉकिंग अवे, कुछ चीज़ों को अगर आप पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि छोड़ूं या शुड आई गिव इट अनदर चांस, माई सजेशन वुड बी जस्ट लीव इट इन दिस ईयर एंड मूव फॉरवर्ड इन 2023 along with people, along with experience, along with the clarity that you really need, along with people who support you in that. So yes, you are going to be the magician, you are going to get things done and you're going to achieve a lot of success in 2023. जो भी आपके goals हैं, आप जल्दी जल्दी अगर set नहीं किए हैं तो set कीजिए, एक deadline लगाइए and I'm sure you're going to achieve it. Let's see, I'll just move this bottom of the deck because that's I'll have the other cards out for you. Let's see what the Moonlogy card says for you. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Let's see how your moods are going to be. What is your emotional side? What are your emotional decision makings that you should keep in mind, especially in the first quarter of 2023? So we have one card, prosperity lies ahead. Excellent card, excellent. Just what I was trying to tell you, fire signs, मैं आपको बता रही थी कि आपको ऐसी चीज़ों के साथ जो आप मूव इन कर रहे हैं 2023 में, जितनी क्लैरिटी के साथ आप मूव कर रहे हैं, जितना गोल ओरिएंटेड आप रहेंगे, एंड द एनर्जी दैट आई कैन गेट इट डन एंड आई कैन गेट एनीथिंग डन, वो वाली एनर्जी के साथ आप मूव इन कर रहे हैं. तो फायर साइंस डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी इज गोइंग टू लाई अहेड. न्यू मून इन टॉरस का कार्ड है. दिस कार्ड ऑल्सो सिग्निफाइज कि थोड़े मेथोडिकल बनिए, थोड़े डिसिप्लिन बनिए. अगर आपके कोई गोल्स हैं 2023 के, आई कैन एक्चुअली सी दैट बीइंग फुलफिल्ड. आप अचीव करेंगे उन सारे गोल्स को, छोटे बड़े, आई एम नोबडी टू जज. मे बी एक सिंपल सा गोल होगा आपका कि I want to save a lakh, or a smaller goal like I want to pass this examination, or I want to make sure that I hit the gym daily. So छोटे छोटे goals आपके होंगे and you are going to achieve it. You are going to actually make, bring out a good result. ऐसा नहीं है बस goal achieve कर लिया आप, you're going to outdo yourself. New moon in Taurus, sorry for that. New moon in Taurus again implies a little methodical approach. अगर आप थोड़ा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, आप बैठ के आज, या अगर आप नहीं बनाए हैं तो आज बैठ के एक 12 मंथ का प्लान बना लीजिए कि जनवरी में मैं ये करूँगा, फरवरी में ये, मार्च में ये, क्वार्टर वाइज प्लान बना लीजिए. एंड दैट वे आई थिंक यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट. फॉर सम ऑफ यू आई थिंक वॉकिंग अवे फ्रॉम एन ओल्ड लव and if you people are in no contact, I would suggest कि आप आगे बढ़ें. अगर आप ब्रेकअप से गुजरे हैं इस साल, I would say आप आगे बढ़ें. And अगर आप लोग you're looking for new love but you're a little sad with all the emotional damage that you have gone through, I think this is the time to heal. आप heal करेंगे 2023 में. Things are going to be back to normal and I feel some of you are going to meet the love of your life. You're going to be healed by that person. But I personally, मेरे से पूछेंगे, I would say कि आप खुद ही heal कीजिए अपने आप को. But yes, I absolutely have a very strong feeling that you people are going to meet. Fire signs, आप definitely किसी नए से मिलने वाले हैं and the spark is going to come back. What else? Somewhere I also feel that जैसे मैं पहले बोल रही थी कि बिकॉज ऑफ द ईयर दैट इज़ कमिंग इन, इट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ लेजी एनर्जी अटैच टू दिस ईयर. सो आई वुड सजेस्ट दैट सम ऑफ यू might experience laziness because of which you do not achieve your goals. फिर आपको लगेगा कि मैं गलत रीडिंग बोली and stuff like that. तो I would suggest कि आप be careful that you do not
you don't go into that lazy mode of yours and you are able to achieve what you want. The final message is, जैसे मैंने आपसे ये भी कहा, again Taurus is a sign that really takes good care of the body and the mind. So I would suggest कि आप एक healthy body, healthy mind maintain करें. And I also feel some of you are really a little caught up with finance. थोड़ा फाइनेंशियल साइड से आप थोड़े परेशान हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही. तो लेट मी टेल यू, जो भी आप अफोर्ड करना चाहेंगे ना, जो भी आप सोचेंगे इस साल कि मुझे ये लैपटॉप चाहिए या मुझे वो टीवी चाहिए या वट एवर आपकी जो फ़ोन है या आप घर के कोई अप्लायंस आप ख़रीदना चाहते हैं, वट एवर यू कैन ड्रीम ऑफ दिस ईयर, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यू कैन अफोर्ड इट. यू कैन अफोर्ड इट. आपको वैसे रास्ते मिलेंगे जहाँ आप उस चीज़ को पा सके, is what I can clearly see. अगर आप सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, this is I think a direct message to some of you. Aries, Leo, Sagittarius, this could be like a direct message to somebody. If you are planning to start a savings account, if you're trying to start a recurring account, if you're trying to इन्वेस्ट योर मनी इन अ प्लेस लाइक एन एमरजेंसी फंड, अगर आप वैसा कुछ करने का सोच रहे थे पर नहीं किए हैं, आई थिंक दिस इज़ द टाइम. फर्स्ट को तो संडे है, अब सेकेंड मंडे, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट डे टू स्टार्ट. इन्वेस्ट अ लिटिल. आई एम नॉट सेइंग इन्वेस्ट इन स्टॉक और समथिंग, बट येस, प्लीज़ यूज़ योर इंटेलेक्ट इफ़ यू वांट टू डू इट. इफ़ यू आर केपेबल टू डू इट. बट आई वुड सजेस्ट सेविंग अप फॉर एन एमरजेंसी फंड. आई थिंक that is very, very important for you at the moment. You will get whatever you want. There's no stress. अगर मैं emergency fund बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं कि कुछ ख़राब होने वाला है, कुछ emergency आने वाली है. But I think this is the time when you start and be prepared for anything that life can throw at your face. And yes, this card is also a very luxurious card with the magician. अब magician आया था आपके लिए bottom of the deck में. With that energy and the Taurus energy, ये दोनों ही एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है. लोगों के साथ मिलके आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए. एंड फाइनेंशियली दिस इज़ अ वेरी स्टेबल ईयर. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फाइनेंशियली दिस इज़ अ वेरी वेरी स्टेबल ईयर. लव साइड, I already told you, I feel some of you are getting into a new relationship, or maybe if you are in an old relationship, चीज़ें थोड़ी सी sexier हो जाएंगी. Relationship will take a more close connection. And let's see what are the colors that tell you. I absolutely love this deck. इतने प्यारे colors हैं इसमें. Let's see which color holds what significance for you for this year. Aries, Leo, Sagittarius. Bronze. Wow, this looks really nice. I hope the cards are visible. Strengthen your body. मतलब I can't emphasize any more. मैंने पहले when I picked up the cards, मैंने तभी कहा कि you should work on your health. And again फिर ये card आया, and which talks again about having a healthy mind and body. And again you can see bronze, which says strengthen your body. I am sure that some of you are, क्योंकि fire sign usually बहुत well maintained होते हैं physically, उनकी physiques बहुत well maintained होती है. But अगर आप में से कोई है जो सोच रहे थे नहीं कर रहे हैं, तो this is the time when you should start focusing on strengthening your muscles, your body. And also if somebody is going through some kind of illness, and like I first said, that you should start an emergency fund immediately and take care of your health. I think this is the year that you should take steps towards it. I think planting trees, I don't know, this could be a direct message for somebody. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं plant करूँ कुछ seeds, या अपने घर में छोटा सा पौधा, या आप कुछ something related to earth अगर आप करना चाह रहे हैं, I think this is the time when you should just do it. आप आराम से अपने टाइम पे whatever, even if it is a small rose plant or a money plant that you want to have, you can actually start small, छोटी छोटी चीज़ों से, like a table like a table plant or something, office desk plant होते हैं वैसे कुछ भी, something related to the soil I think would actually help you somewhere in this
दिस ईयर, एंड आई वुड सजेस्ट आप जनवरी से ही ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि दैट इज़ व्हेन थिंग्स आर गोइंग टू स्टार्ट मूविंग इन योर फेवर. आई विल पिक अनदर कार्ड. Sorry, one more card and then I'll take the angel cards. I just want to see what guidance we have from these cards. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. We have the Kalki card. What a beautiful card. Destroyer of the Iron Age. I'll just read the card out for you. ऐसे मैं दिखाऊंगी तो बहुत दिक्कत होगी मुझे पढ़ने में. So this card talks about strength in adversity, overcoming arguments, determination in combating evil, escaping the negative influence of the age of Kali. So again, like I said, this card emphasizes a lot about how you have to focus on your communication. आप चीज़ें अचीव करेंगे, दैट डजंट मीन कि आप रूथलेस हो जाए, आपकी कम्युनिकेशन ख़राब हो जाए. कोशिश कीजिए कि जितना आप पोलाइट रह सकें, जितना शांत रह सकें, उतना आपके लिए अच्छा होगा. ट्राई कीजिए कि आप चीज़ों को मॉडर्न तरीके से करें, बट अपने एथिक्स ना भूलें. आई थिंक दैट इज़ द राइट मैसेज दैट वाज ट्राइंग टू कन्वे. चीज़ों को ऐसे कीजिए कि वो मॉडर्न हो, मॉडर्न सोल्यूशन हो, मॉडर्न वे ऑफ लिविंग हो, बट ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट योर एथिक्स, डू नॉट फॉरगेट योर traditions, do not forget your base, basically your आपका जो बेस है, जिस वजह से आप जहाँ हैं, जो भी अचीव किए, उसको मत भूलिएगा. दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि आप अपने पुराने रिलेशनशिप को जस्ट बिकॉज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और आप आगे बढ़ गए हैं लाइफ में, तो आप उसको नज़रअंदाज करें. ऐसा नहीं कीजिए. कम्युनिकेशंस क्लियर रखें, क्लैरिटी रखें अपने बातचीत में. नाउ आई एम गोइंग टू टेक द एंजल कार्ड्स फॉर यू, एंड I would want all of you to, while I shuffle the cards for you, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, I would request कि आप अपने मन में एक सवाल सोच लें जो आप मे बी इस साल अचीव करना चाह रहे हैं, या कोई सवाल है जो आपको बॉदर कर रहा है. बिफोर यू मूव इनटू 2023, मैं चाहूँगी कि आप वो सवाल अपने मन में सोचें, उसको दोहराएं जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ. एंड आई pray that you get your answer via this card. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Think of a question you're looking to get an answer for. Get more information. जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले भी कहा कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, जो भी एक्सपीरियंसेस मिले हैं, उसके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं. सो यू विल गेन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी दिस ईयर, फायर साइंस, बट एट द सेम टाइम आप उस क्लैरिटी को यूज़ कीजिए. आपका जो भी सवाल था मन में, एंड वट एवर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस थे आपके, या जो भी चीज़ें में आप क्लैरिटी मांग रहे हैं, यू आर गोइंग टू गेट दैट क्लैरिटी. आपको उस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी. एंड अगर आपका सवाल येस या नो टाइप का कुछ था, ये होगा कि नहीं होगा, या मैं ऐसा करूं या नहीं करूं, सो आई थिंक अगर आपका येस एंड नो क्वेश्चन है, आई वुड से दिस इज़ लाइक अ मे बी. ऐसा सिचुएशन तभी आता है जब इनफ इंफॉर्मेशन नहीं होती है. सो इफ़ योर क्वेश्चन इज़ कि if your question is somewhere related to spiritual growth, if it is any way related to spiritual growth, this is a big no. The answer is no, don't do it. अगर आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू बिजनेस है, फाइनेंस है, दिस कुड बी लाइक अ मे बी, बट यू लैक इंफॉर्मेशन. इफ़ योर क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, इफ़ इट इज़ रिगार्डिंग अ पर्सन जिनसे आप प्यार करते हैं, इमोशनली जुड़े हुए हैं, फॉर दैट पर्सन आई वुड से दिस इज़ गिव दिस रिलेशन अ लिटिल टाइम. ये कनेक्शन को, ये रिलेशनशिप, जो भी आप जिसके बारे में आप पूछ रहे थे, उसको थोड़ा टाइम दीजिए. यू हैव नॉट गिवन इनफ टाइम. थोड़ा इसमें और टाइम जाएगा, थोड़ा और इमोशन जाएगा, थोड़ा और एफर्ट जाएगा, एंड देन यू कम बैक विद दिस क्वेश्चन. मेरी टाइमलेस रीडिंग ऑलरेडी है इस चैनल पे, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं. यू कैन वॉच दैट रीडिंग व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड अ लिटिल मोर टाइम एंड एफर्ट, एंड देन यू कैन अगेन कम बैक and rewatch
or you can watch that reading to get more clarity. But अभी के लिए relationship related questions जो हैं, this will take a little more time. आपने question बहुत जल्दी पूछ लिया है. Business के लिए this is, you need more experience to start off. I think that would be the right word. But if you are looking spiritual कोई question है आपका, this is a big no. Do not move forward. अभी बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है आपका. And yes, with this I will wrap your reading. Aries, Leo and Sagittarius, I wish you all the very best for 2023. आपके कार्ड्स बता रहे हैं prosperity है सामने, a lot of clarity, experience gain करेंगे, a lot of money coming in. जो गोल सेट करेंगे वो गोल्स को आप अचीव कर पाएंगे. अपनी हेल्थ का बहुत अच्छा ध्यान रखिए, अपने माइंड का बहुत अच्छा ध्यान रखिए, अपने कम्युनिकेशंस को क्रिस्टल क्लियर रखिए, एकदम क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, अवॉइड बीइंग रूड अननेसेसरीली, थोड़ा काइंड कम्युनिकेशन कीजिए. दुनिया ऐसी ही बहुत बुरी है, आप प्यार से बात करें. और येस, एंड डू नॉट रिग्रेट. दिस इज़ नॉट अ ईयर फॉर यू टू रिग्रेट एट ऑल. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग थी. आई होप इससे आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, मैं आपको किसी भी टाइप का मैसेज प्रोवाइड कर पाई हूँ. आई होप दिस हेल्प्स एंड गाइड्स यू इन द कमिंग ईयर. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. हाई एंड वेलकम टू योर रीडिंग अर्थ साइन. जिनकी राशि, जिनकी ज़ोडिएक साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, ये आपकी रीडिंग है. एंड लेट्स स्टार्ट राइट इनटू द रीडिंग. मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ. लेट्स सी व्हाट इज़ द थीम फॉर यू, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, व्हाट इज़ द टोन दैट 2023 इज़ सेटिंग आउट फॉर यू. थोड़े नॉइज़ डिस्टर्बेंस हैं. आई एम रियली सॉरी अर्थ साइन, बिकॉज ये रीडिंग रिकॉर्ड हो रही है ऑन 31st. सो आस पास एकदम पार्टी का माहौल है. देयर आर पीपल हु आर really gearing up to welcome the new year with a bang. So yeah, so I've shuffled your cards. The first card is the 10 of Pentacles. My God, this is the exact card in the same placement जो air sign के लिए भी आया था. And this is the same card for earth sign as well. कुछ तो connection है earth and air में. This is the same card that is coming in. Bottom of the deck is the death card. दिस इज़ अ मेजर अरकाना कार्ड. एंड बहुत लोग बोलते हैं कि ये एक बुरा कार्ड है या इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ बैड एनर्जी. मेरा ये मानना नहीं है. आई एब्सोल्युटली अप्रिशिएट दिस कार्ड. मुझे ये कार्ड का आना एक बहुत अच्छा साइन मेरे लिए होता है, क्योंकि डेथ मीन्स द एंड ऑफ थिंग्स दैट वर नॉट राइट फॉर यू. जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी वो ख़त्म हुई हैं. जो चीज़ें आपके लिए सही हैं वो स्टार्ट होंगी. समवेयर देयर कुड बी सम कनेक्शन विद अ स्कॉर्पियो और अ वाटर साइन जो आपके साथ कनेक्टेड थे और अब नहीं कनेक्टेड हैं. दिस कार्ड जो एनर्जी के साथ, मतलब दिस इज सच एन एब्सोल्युटली बैंग ऑन कार्ड फॉर यू अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस कार्ड टू कम आउट फॉर यू, क्योंकि हम लोग एक साल के एंड में हैं, राइट. 2022 को छोड़ के हम 2023 की तरफ बढ़ रहे हैं. एंड आप देखिए नीचे चैरियट का भी बॉटम द डेक के बाद वाला कार्ड चैरियट है, यानी कि आप एक बैलेंस स्टेट में यू आर मूविंग टूवर्ड्स 2023. एंड देर इज with this card, with this major arcana card, this is bringing an end to things जो आपके लिए काम नहीं किया, things that were not in alignment with you, things that didn't work out for you, उसका end हो रहा है. You are going to step into new beginnings. And then you have this beautiful card, the 10 of Pentacles, which indicate stability, growth, love, companionship, marriage. सो दिस ईयर वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, अगर आप किसी को लेके सोच रहे हैं, देयर आर हाई चांसेस आप सेटल डाउन होने वाले हैं. हाई चांसेस आपकी मैरिज फिक्स होने वाली है. घर के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर नहीं थी तो दिस ईयर यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. विद दिस ईयर यू आर ऑल्सो गोइंग टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे. बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स. इफ़ यू पीपल आर लुकिंग, अगर कोई है, दे आर एक्सपेक्टिंग टू गेट प्रेग्नेंट, दिस इज़ द ईयर दैट यू माइट गेट प्रेग्नेंट. बेसिकली दिस इज़
अ न्यू ईयर एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट विद अ बैंग। आप पुरानी चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं पीछे, बहुत आगे निकलने वाले हैं। दिस ईयर इज़ अ ईयर ऑफ विन, सिर्फ जीत होगी आपके पास। अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ अ वंडरफुल ईयर। आप बहुत चीज़ों के गोल्स अचीव कर पाएंगे, बहुत एस्पेक्ट्स आपके लाइफ के, wonderful aspects of your life, whether it is job, whether it is your business, whether it is your love, whether it is your finances। कुछ गोल्स हैं आपके, घर खरीदना है, शादी करनी है, किसी को आई लव यू बोलना है, सारे के सारी चीज़ें दिस ईयर विल गो एज प्लान्ड। आपको हर तरह से सुख समृद्धि की यू विल फील दैट, यू विल फील ग्रोथ, यू विल फील एक्सेप्टेंस, यू विल फील लव्ड एंड यू गोइंग टू विन मैसिवली। मैसिव विन्स हैं आपके लिए। आप यू गोइंग टू बी इन दैट स्कॉर्पियो एनर्जी, जहाँ आप जो चीज़ आपके लिए काम नहीं करती हैं आप उसको ख़त्म कर देते हैं वहीं पे। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग। बहुत मतलब आपके अंदर का जो अर्थ साइन का एलिमेंट है, स्पेशली वर्गो एंड टॉरस, दे आर वेरी वेरी क्लियर व्हेन इट कम्स टू अगर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा। वेरी स्टबन एनर्जी है वर्गो की, वेरी प्रैक्टिकल एनर्जी है। एंड अगेन कैप्रिकॉर्न्स आर वेरी मेथोडिकल एंड वेरी क्लियर इन व्हाट दे वांट इन लाइफ एंड इन जनरल। सो आप जो आपकी बेस एनर्जी है ना, अर्थ साइन आपकी जो बेस एनर्जी है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, यू हैव अ वेरी प्रैक्टिकल मेथोडिकल अप्रोच टू लाइफ, एग्जैक्टली वही होने वाला है। यू आर नॉट गोइंग टू इंटरटेन एनीथिंग जो आपके काम का नहीं है, जो थॉट, थिंग, पर्सन, कोई भी कनेक्शन जो आपको फ़ायदा नहीं दे रहा बट आपको नुकसान कर रहा है, चाहे वो इमोशनली ड्रेन कर रहा हो, चाहे फाइनेंशियली ड्रेन कर रहा हो, आप उसको ख़त्म करने वाले हैं। यू आर क्लोजिंग द चैप्टर, किताब बंद करके फेंक देने वाले हैं आप एक नए बुक से, नए सिरे से आप स्टार्ट करने वाले हैं। एंड यू गोइंग टू एक्सपीरियंस ग्रोथ, यू गोइंग टू एक्सपीरियंस विन्स। जो भी चीज़ आप करना चाहें, आई कैन सी मैसिव ग्रोथ इन दैट एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू अर्थ साइन। खुशी का ये भी कारण है कि आई माई सेल्फ इज़ अ अर्थ साइन। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस कार्ड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो येस, बधाइयाँ। सो लेट्स सी द नेक्स्ट मूनलॉजी कार्ड फॉर यू अर्थ साइन। देखते हैं आपके लिए क्या इमोशनल गाइडेंस मिलती है आपको, क्या आपको करना चाहिए फ्रॉम द मूनलॉजी डेक। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न 2023। Look at the bigger picture. My God, this is such a beautiful card. Full moon in Sagittarius. This is a fiery energy with this. Again, जैसा आपका डेथ कार्ड का एनर्जी था, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कट थ्रोट होती है ये एनर्जीज। दीज एनर्जीज आर वेरी कट थ्रोट, एकदम सीधा, नो बकवास, सीधी बात नो बकवास वाला हिसाब रहता है इनका। एंड एग्जैक्टली सेम एनर्जी आपकी यहाँ भी देखने मिली है। सैजिटेरियस फायर एलिमेंट का फुल मून आया है। थिंग्स आर गोइंग टू कम टू एन कंक्लूजन, थिंग्स आर गोइंग टू गैदर एंड यू आर गोइंग टू बी मोर फोकस्ड। एम, अगर आप कोई चीज़ पे एम लगाते हैं तो वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। ऑल्सो जब चीज़ों को आप जज करें, दिस ईयर आई वुड लाइक टू से कि चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई कलीग हो, कोई सामान हो, घर का कोई अप्लायंस हो, कोई डिसीजन हो आपके लाइफ का, कुछ भी हो, मेक श्योर कि आप चीज़ों को एक लॉन्ग टर्म हिसाब से आप प्लानिंग करें। ऐसा नहीं कि अभी आपको ये अप्लायंस लेना है तो आपने फट से ले लिया और फिर आपको लगा यार ये मैंने क्यों ही ले लिया है, तो जगह खा रहा है घर में और मेरे कोई काम का भी नहीं है। ऐसा ना करें आप। थोड़ा चीज़ों को पूरी तरह समझें कि वेदर ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए है कि नहीं। सिमिलरली कलीग्स को लेके भी, अगर आप एक जॉब अपॉर्चुनिटी अप्रोच कर रहे हैं तो आप एक पूरा पिक्चर देखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आई स्विच जॉब्स, मैं वो जॉब कर लेता हूँ या मैं ये बिज़नेस कर लेता हूँ, तो चीज़ों को बड़े तरीके से सोचिए पहले कि लॉन्ग रन में ये क्या करेगा, ये लॉन्ग रन में मुझे फ़ायदा देगा या मैं थक जाऊंगा या मैं थक जाऊंगी या आई विल बी ड्रेन्ड आउट, डू आई रियली वांट टू डू दिस। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं अपने आप से पूछें एंड देन मूव फॉरवर्ड। और चीज़ों को ना लॉन्ग टर्म देखें। ऐसा नहीं कि अभी मज़ा आ रहा है तो अभी कर लिया, अभी किसी से बात करके अच्छा लग रहा है तो अभी कर लिया, नहीं, चीज़ों को लॉन्ग टर्म देखें। एंड जो भी आपके लाइफ में हो रहा है या पिछले कुछ दिनों से हो रहा है या कुछ होने वाला है, वेदर इट इज़ रिलेशन, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, जो भी करियर चेंजेस, पढ़ाई फॉर दैट मैटर, सब कुछ एक चीज़ों को ऐसे देखें कि ये मुझे आगे जाके क्या फ़ायदा देने वाला है, राइट। छोटे गोल्स ना रखें,
इज़ द क्लियर मैसेज। बड़े गोल्स रखें। अगर आप ऑल्सो वन थिंग, ये गोल सेटिंग की भी बात करता है। दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट गोल सेटिंग। सो अगर आपका कोई गोल है या करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज, अगर आपका कोई गोल है, कोई बिजनेस गोल है, तो ज़्यादा ये मत डिटेल में मत जाइए कि ये एकदम, क्योंकि आपकी साइन ऐसी है ना, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, आप लोग ऐसी साइन है कि आप लोग डिटेल में बहुत चले जाते हैं। मतलब ये प्रोसेस होगा, ये आउटकम होगा, ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, ऐसे हैं आप लोग। तो ये गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा अप्रोच है टू लाइफ। बट अभी क्या है ना, दिस ईयर 2023 अर्थ साइन से डिटेल नहीं मांग रहा है, 2023 आपसे। 2023 अर्थ साइन से मांग रहा है क्विक एक्शन। फटाक से एक्शन लीजिए। आपको ये सही लग रहा है, आप थोड़ा बैठिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, 4-5 सवाल निकालिए, हाँ ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। सोचिए मुझे लॉन्ग टर्म में गेन दे रहा है कि नहीं, एंड फटाक से कीजिए। डिटेलिंग में मत जाइए कि इसको पहले ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ये प्रोसेस, ऐसे ना करें आप। इस साल आप क्विकली डिसीजन ले कि शुरू कर दीजिए, राइट। श्री गणेश पहले आप कर दीजिए, फिर धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी। उसको आप उसको लेके आप फ्रेट मत कीजिए। ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि सिर्फ सोचते रहने से काम नहीं होगा, सिर्फ बोलते रहने से काम नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना होगा। काफ़ी दिनों से आप शायद सिर्फ कोई टॉपिक को लेके, या कोई इंसान, या कोई रिलेशनशिप, या कुछ भी, कोई भी सिचुएशन को लेके, कोई थॉट को लेके आप सिर्फ बकबक ही कर रहे हैं, बट आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो 2023 में डे 1 से प्लीज़ आप थोड़ा सा भी एक्शन हो, 10 मिनट ही हो, उस पर्टिकुलर गोल या उस पर्टिकुलर इंसान या उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट अपनी लाइफ का जिसको आप आगे लेके जाना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा भी एक्शन लीजिए, राइट। सो ज़रूरी है इसके लिए कि आप थोड़ा शांत भी रहें, राइट। जब हम लोग ट्रांजिट कर रहे हैं 2022 से 2023 में, तो ज़रूरी भी है कि आप थोड़ा सा, गाड़ी जब आगे बढ़ती है तो थोड़ा एक बार पीछे लेके फिर ज़्यादा आगे बढ़ पाती है। तो आप एक स्टेप पीछे लीजिए एंड समय निकाल के पूरी चीज़ को समझिए, एंड देन टेक अ डिसीजन कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है और इस पे मैं एक्शन आज से स्टार्ट करूँगा या करूँगी। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि आप लोग अर्थ साइन हैं और आप लोग बहुत अपने आप को ड्रेन कर देते हैं, अपने आप से बेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, और यू पीपल आर द हार्डेस्ट, अपने ऊपर आप सबसे ज़्यादा अत्याचार करते हैं। तो ज़रूरी है कि इस पूरे प्रोसेस में अब ड्रेन आउट ना हो जाए, क्योंकि सफ़र लंबा है, राइट। पूरा साल निकालना है, बहुत सारे गोल्स अचीव करने हैं, बहुत कुछ करना है, और बहुत सुंदर तरीके से उस चीज़ को द आउटकम को बहुत सुंदर बनाना है आपको। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मिनी ब्रेक्स लेते रहें, छोटा छोटा ब्रेक लें, कहीं घूम आए, एक दिन काम ही नहीं किया, एक दिन फ़ोन ऑफ कर दिया, मिनी ब्रेक्स आप पूरे साल में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें, जिस वजह से आप रिफ़्रेश होते रहें। आपका जो फोकस है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो ठीक होता रहे, उससे आप बेटर फील करेंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। हालांकि जब आप छोटी छोटी स्टेप्स लेते हैं, छोटा छोटा प्रोग्रेस होता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस के भी शिकार आप हो सकते हैं। सो अवॉइड दैट। एक बैलेंस बनाइए, ना ज़्यादा बोलना है, ना ज़्यादा सुनना है। एक बैलेंस क्रिएट कीजिए कि ज़्यादा बोलना नहीं है सामने वाले को, बट क्लियर मैसेज जाए। आप अपनी बातें, अपनी कम्युनिकेशंस क्लियर रखें, ज़्यादा भी ना बताएं और कम भी ना बताएं, एकदम ठीक ठीक बताएं। सोच समझ के बातें कीजिए, सोच समझ के अपने प्लान्स, अपने गोल्स लोगों के साथ शेयर कीजिए, सबके साथ नहीं शेयर करना है। आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे कि बहुत सारी चीज़ें करनी थी आपको, आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे, बट दिस इज़ द ईयर जब आपको एक एक चीज़ उठा के यू हैव टू क्रैक इट डाउन। एक एक चीज़ को आपको क्लियरली अंजाम तक पहुंचाना है, जिसकी वजह से ही आप थोड़े ड्रेन आउट भी फील कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा आप ब्रेक्स लीजिए एंड सरप्राइज़ अपने लिए सॉरी, आई डोंट नो व्हाई गॉट स्टक एट दैट क्योंकि आई थिंक मैं बोलने वाली थी कि आप लोग अपने लिए ही सरप्राइज़ प्लान कीजिए, अपने लिए ही सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, और तभी माई थ्रोट गॉट डिस्टर्ब। सो येस, मुझे पता है कि अर्थ साइन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है अपने लिए कुछ करना, अपने लिए समय निकालना,
बट येस आपको करना पड़ेगा एंड दिस विल क्रिएट अ बैलेंस इन योर सेल्फ. आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेंगे. आपकी जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये सब आपकी इस साल बहुत मदद करने वाले हैं. बहुत ग्रोथ आप देखने वाले हैं. बट ऑल यू हैव टू डू इज़ स्टेइंग हम्बल. थोड़ा हम्बल रहिए. ट्राई टू कीप एन ओपन माइंड. कुछ भी आपके प्लान से थोड़ा इधर उधर हो गया तो आप उदास मत हो जाइए या ये नहीं चल रहा. बहुत कंट्रोलिंग नेचर के मत होइए. आराम से अपना हैव फेथ इन वट एवर यू आर डिसाइडिंग टू डू. गोल सेट किया है, अगर आउटकम वैसा वो नतीजा नहीं आ रहा है तो पैनिक मत कीजिए. अपने अंदर पैनिक मत लाइए. बट बी काम एंड एक्सेप्ट कि ठीक है ऐसा भी हुआ तो दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. रीरूट कीजिए, ठीक है, डिटोर कीजिए और एंड देन गो बैक टू अचीविंग. अपना जो एंड गोल है उसको मत चेंज कीजिए. अपना प्रोसेस को चेंज कीजिए. अगर आउटकम आपका वैसा आ नहीं रहा है, यू सिट बैक, रीवर्क द प्लान एंड रीवर्क द प्रोसेस एंड गेट इट. बट उसके लिए पैनिक क्रिएट करना, अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट करना, ये एकदम ही गलत होगा. सो टेक मिनी ब्रेक्स, स्टे फोकस्ड एंड डोंट ट्राई टू बी कंट्रोलिंग. बी रेडी कि कुछ प्लान्स आपके वैसे ना जाएं. समटाइम्स आप प्लान करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आप सोचेंगे कि मेरे if I have to complete 2 chapters and I'll get 100 marks in that, and आपको पता चलेगा कि आपने 2 chapters किए but आपको 100 marks से ज़्यादा मिल गया. So be prepared to have some surprises in your year, क्योंकि आप जो भी effort डालेंगे उससे ज़्यादा ही आपको मिलने वाला है this year. So I'm really very happy for you, my earth sign, Virgo, Taurus and Capricorn. Let's see the next card, the color card for you. Which color holds significance? Which number is holding significance? Virgo, Taurus, and Capricorn. Capricorn. Violet. Beautiful. कितना सुंदर कोऑर्डिनेट हुआ है ना ये कलर. Create a balanced life. 45. My God. Again. मैं क्या ही बताऊँ आपको. अभी मैं यही बात बोल रही थी कि मिनी ब्रेक्स लीजिए, एक बैलेंस स्टेट में रहिए. ना ज़्यादा बोलिए ना ज़्यादा बताइए, बट क्लियर रखिए अपने कम्युनिकेशंस. सब बताना भी नहीं है बट जितना ज़रूरत है बताना है. सो येस, क्रिएट अ बैलेंस्ड लाइफ इज़ द मंत्रा फॉर यू. वायलेट कलर आपके लिए सिग्निफिकेंस हो सकता है. वायलेट कलर इज़ ऑल्सो सिम्बलाइजेज स्पिरिचुअलिटी, जिस वजह से मैंने आपको बोला कि आप स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ. मेथॉडिकल मत होइए, अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए. मेडिटेट कीजिए, शांत रहिए. एंड दिस इज़, अगर कोई आप में से कोई is into meditation or chakra healing, I think working on your third eye would help. Again, 45 could be an important number for some of you. Number 9 could be an important number for some of you. Again, very similar to the air sign, क्योंकि air sign का भी total 9 आ रहा था, उनका 27 था. Again, this is also 9. So कहीं ना कहीं आप एयर साइन से बहुत जुड़े हुए हैं. अर्थ साइंस, देयर इज सम रियली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन between you and the air sign. You can have a look at the reading अगर आप किसी को जानते हैं air sign के, so maybe that reading of the air sign could help. And yes, this is the year where you have to create a balanced life, Virgo, Taurus and Capricorn, and you will be able to create excellent magic. You will discover the real you, the real spark in you. Just have faith and lead a very balanced life. Let's see the other card for you, Earth sign, for 2023. Dhanvantri. Oh my God, such a beautiful card. निकल नहीं रहा. Again, prosperity. धन, बहुत ही सुंदर कार्ड है. such luxurious. I hope the camera is being able to capture. Dhanvantri, god of medicine, god of healing. Wow, beautiful, beautiful card. Let's read the message behind it. Freedom from disease. अगर आप में से कोई disease को लेके या कोई skin allergy हो या some kind of viral thing that is holding on to you, you could heal from that.
Somewhere down the line, freedom from disease, I also can feel this could mean inner healing also, क्योंकि आपका violet card आया, which again signifies spirituality, balanced life again, is also an indication of healing something. So maybe healing is something that is going to happen for you. आप heal कर सकते हैं. मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ relationship healing भी बहुत गहरी हो रही है यहाँ पे. Somebody who has hurt you in the past, बहुत तकलीफ मिली है आपको, आपके expectations टूटे हैं, things didn't work out, आप expect ही नहीं कर रहे कुछ अपने पार्टनर से, एंड अब मतलब आप जो भी आपके पार्टनर है उससे आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, एंड थिंग्स आर टर्निंग आउट ब्यूटिफुली फॉर यू. आप हील हो रहे हैं, सिचुएशन हील हो रही है, सर्किल ब्रेक हो रहा है. सो येस, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज कुड ऑल्सो मीन फ्रीडम फ्रॉम ओल्ड साइकिल्स. कोई साइकिल आपका चल रहा है तो वो एंड हो रहा है. ग्रेटर हेल्थ एंड वेल बीइंग, which is very clear in this 10 of Pentacles वाला card. Mastery of medicines and science, this is a clear indication कि आप कुछ magic definitely create करने वाले हैं. Medicines क्या करते हैं? It's very unique combination of different elements which actually heal your body or whatever kind of healing you're looking for. Spiritual knowledge and liberation. See, I told you this card is about spirituality. So yes, Earth sign, I would request you, if you spend some time in this year meditating or working on your chakra, especially your third eye chakra. I would really love to hear from you people if some of you are doing a third eye chakra ka healing or something, which is actually very powerful, बहुत powerful होता है. So before I take the last card for you, Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn, आपके मन में अगर कोई सवाल है जिस सवाल के साथ आप 2023 शुरू कर रहे हैं एंड आपको लग रहा है इस पे गाइडेंस मिल जाती तो बहुत बढ़िया होता, सो वो सवाल को सोच लीजिए. कोई इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उसको सोच सकते हैं, एनी वन थिंग और मे बी मल्टीपल. आई जस्ट होप द नेक्स्ट कार्ड विल गाइड यू इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. सो क्विकली शफल द कार्ड्स, आप सोचिए तब तक. ओके, एक कार्ड खुल के गिरा है एंड द कार्ड रीड्स इन द नियर फ्यूचर. लेट्स सी, मैं वो कार्ड नहीं लूँगी बट आई विल शफल अगेन फॉर यू. there's something better. This is such a beautiful card, which means कि आप बहुत aligned रहेंगे. देखिए again there is a purple energy. I don't know if the camera is being able to pick up the color. This is again a very purplish energy, something that is connected with your soul. The bottom of the deck says look for a sign. तो आपको यूनिवर्स की तरफ से डेफिनेटली कोई साइन मिलेगा. आपका जो भी ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक साइन मिलेगी. उस साइन में आपको मिल जाएगा कि दिस इज़ अ येस और अ नो. अगर आप पूछ रहे हैं ये येस और नो क्वेश्चन है तो आई थिंक दिस इज समवेयर मे बी, एंड बट इट्स नॉट अ नो. ना की तरफ नहीं है ज़्यादा झुकाव. अगर आपका येस नो क्वेश्चन है तो मे बी है अभी का आंसर, बट मे बी इन द नियर फ्यूचर द आंसर विल बी एज पर द अलाइनमेंट ऑफ द यूनिवर्स. जो आपके लिए सही होगा वो होने वाला है. एंड जो भी आपका क्वेश्चन है उस समथिंग बेटर इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू. तो आप अगर परेशान हैं किसी इंसान को लेके, कोई रिलेशनशिप को लेके, कोई जॉब को लेके, तो आप प्लीज़ उतना परेशान मत होइए. दिस कार्ड इज़ एन इंडिकेशन दैट यू आर वेल टेकन केयर ऑफ. आपका ध्यान रखा गया है. यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ यू. यू डोंट हैव टू वरी. एंड जो कार्ड गिर गया और जो मैं नहीं ले रही हूँ उसमें लिखा था इन द नियर फ्यूचर, यानी कि देर इज़ समथिंग बेटर इन द नियर फ्यूचर. ऑल यू हैव टू डू इज़ लुक फॉर अ साइन. आपको यूनिवर्स साइन देते रहेंगे. एंड लेट मी टेल यू कि यूनिवर्स हर तरह से आपको एक मैसेज ड्रॉप करते रहते हैं, साइन देते रहते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं. और जो आपके लिए बना है, या जो अपॉर्चुनिटी है, जो इंसान है, जो रिलेशनशिप है, जो कनेक्शन है, जो आपके लिए है वो आपका ही होगा. आपके पास से गुजरेगा नहीं. इट विल नॉट पास यू. आप उसको देख नहीं पाए या कोई साइन ऐसा यूनिवर्स ने दिया आप समझ नहीं पाए, तो ये पैनिक मत लाया करिए अपने अंदर कि अगर यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा है, कोई साइन दे रहा है और मैं मिस कर गया या मिस कर गई. ऐसा नहीं होता है, बिकॉज जो साइन आपके लिए है जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता यूनिवर्स देता रहता है. हम लोग कहते हैं ना कि धोखा खाने से हमें अकल आती है. तो जब तक आप समझते नहीं है, जब तक आपको अकल आती नहीं है, आप धोखा खाते रहते हैं. राइट, वो सर्किल चलता रहता है. वो सर्किल का ब्रेक तभी आता है जब आपको क्लैरिटी मिलती है, जब आपको कोई साइन मिलती है, जब आपको समझ में आ जाता है चीज़ें क्यों हो रही हैं.
सो दिस इज़ अ परफेक्ट अलाइनमेंट कार्ड. जो भी आपका क्वेश्चन था, इट इज़ नॉट अ नो, इट इज़ अ मे बी इन द नियर फ्यूचर आपका ये आंसर, द आंसर वुड बी येस. So I'm so very happy for you, Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn. This is a beautiful reading, especially when it starts with the Ten of Pentacles and it goes up to, you know, being very spiritual and healing and very guided. आप बहुत guided हैं by the universe and it's so beautiful to see that. I wish you all the very best, Virgo, Taurus, Capricorn, for this 2023 new year. And I just hope you'll receive a lot of great experiences, growth, love, peace and clarity. Thank you for watching this and have a great year ahead.